Welcome to the IVM Podcast Network. Hey there, if you like traveling, then here's a cool podcast for you. Check out The Rediscovery Project by Hoshna and Ambika, where they travel across India and talk about their amazing journeys. It's literally like a travel journey, but in a podcast form. How cool is that? You can check out the new episodes on the IVM Podcast app or anywhere else on the internet. It's all there. You're listening to Keeping It Queer with Naveen Narona. Hello and welcome to an all-new episode of Keeping It Queer, everyone. And today with me in the studio, I have Gautam Yadav. Hello, Gautam. Hi. Gautam is very well renowned in the LGBT community in India. He is a program officer for Humsafar Trust Delhi. He represents India at the UN and covers issue around PLHIV, which is people living in HIV, and also LGBT issues. He has his own organization called Youth Lead, where he targets young LGBT individuals, sex workers and drug abusers and tries to counsel them. So a very informative episode ahead. Thank you, Gautam, first of all, for joining us. And let's go back to your early days. How was life for you? Where did you grow up? So basically, I'm from Delhi. Okay. I born and brought up in Delhi, but my family roots are from UP. Okay. And मेरी जो पढ़ाई हुई है वो भी दिल्ली में ही हुई है. Okay. So as you said, your family moved there from UP. So how's your family? Are they Orthodox or they religious? How is your background really? My family is like, they are not so much educated, and of course they are very middle class family. My father, he was an auto rickshaw driver. Okay. And my mother, she was also working, but now she is a housewife. And my father is also now at home. Okay, so and you have siblings? So I have two sisters, and they both are married. Okay. And I'm the only son. So I born and brought up in Delhi and studied in Delhi. And So most of your education happened there? Yeah. So at what age were you curious about your gender or sexuality? How was that for you? It was more like confusion for me, because जब आप बच्चे होते हो आपको नहीं पता होता है कि चीज़ें क्या हो रही हैं, क्यों हो रही हैं. And I remember जब मैं 4th standard में था, तब भी मुझे ऐसा लगता था कि मैं लड़कों की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहा हूँ, एंड अगर मैं हो रहा हूँ तो शायद और लोग भी होते होंगे. एंड देन कुछ चीज़ें होती हैं लाइफ में जब आपको लगता है कि ये सबके साथ होता है, चाहे वो लड़की है या लड़के हैं, सबके साथ ये चीज़ें होती हैं, और एक उम्र के बाद वो चीज़ें अपने आप ख़त्म हो जाती हैं. सो आई वॉज ऑल्सो हैविंग दिस फीलिंग दैट कि शायद मेरे पेरेंट्स या मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं सबके साथ ये हुआ होगा और मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है. तो आई वाज थिंकिंग कि मुझे लड़के अच्छे लग रहे हैं, मुझे लड़कों के साथ खेलना पसंद है, बात करना पसंद है, लेकिन शायद ये दौर है. हाँ, बट वही रहता था माइंड में कि शायद ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि सब लोगों के साथ ऐसा होता होगा. लेकिन फिर ये भी आता था दिमाग में कि अगर सब लोगों के साथ हो रहा है तो फिर लोग शेयर क्यों नहीं करते हैं. मेरे साथ हो रहा है, मुझे मन करता है लोगों को बताने का, बट अगर किसी और के साथ हो रहा है तो वो क्यों नहीं बता रहे. सो देन वो सारे डाउट्स के साथ मैं धीरे धीरे बढ़ा. और लेकिन आपने किसी को बताया कभी इसके बारे में? मैंने कभी एज सच बताया नहीं, बट व्हेन आई वाज इन 4th स्टैंडर्ड तब मुझे लगता था कि मेरा जो अट्रैक्शन है वो लड़कियों की तरफ नहीं है, वो लड़कों की तरफ बहुत ज़्यादा है. इवन क्लास में मुझे लड़कियों के साथ बैठना नहीं अच्छा लगता था. दोस्त होते थे लेकिन उनके साथ लड़कों के साथ बैठना, लंच करना, गेम खेलना, ये सारी चीज़ें मुझे पसंद हुआ करती थी. बट कभी ये नहीं सोचा कि हाँ लड़कियों के बारे में कुछ सो लेकिन आपके सारे जो दोस्त थे आपके आजू बाजू वो सब तो बोलते होंगे कि हाँ वो काफ़ी बट 4th स्टैंडर्ड में इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन 4th स्टैंडर्ड में भी लड़के होते थे जो कुछ कमेंट्स कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं. बट वो लगता था कि क्यों हो रहा है. तो आपने 4th स्टैंडर्ड से अपने अंदर वो दबा के रखा? डाउट था वो. डाउट कभी हमेशा सोचता था कि क्लियर हो. इनफैक्ट व्हेन आई वाज इन 5th and 6th स्टैंडर्ड तो 1-2 बार मुझे लगा भी कि मैं किससे बात करूं, बट हम किसी से बात नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आपको ये लगता है कि कोई समझेगा या नहीं समझेगा, या पेरेंट्स के पास गए तो पेरेंट्स उठा के पीटने ना लग जाए कि क्या हो रहा है ये. सो ऑल दीज थिंग, तो उन सब डर की वजह से ना तो कभी फैमिली में बात किया, ना कभी फ्रेंड्स के साथ बात किया. अच्छा, तो देन यू ग्रो अप अपने अंदर ही वो बात दबा के आपने रखा. तो एट व्हाट एज डिड यू फाइनली डिसाइड कि ज्यादा हो गया अभी? सो व्हाट हैपेंड वाज 4th के बाद स्लोली ग्रो किया, एंड देन आई केम अप टिल 8th स्टैंडर्ड. तो 8th स्टैंडर्ड में मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती थी कि ये जानना है. एंड उस टाइम पे इंटरनेट इतना ज़्यादा नहीं होता था, फ़ोन भी सिर्फ आप
कॉलिंग के लिए यूज करते थे। इंटरनेट होना हो प्यूबर्टी तो होता ही है, तो नहीं बट आजकल की जनरेशन आप देखो 5 साल की उम्र में ही वो लोग कितना फोन यूज करते हैं, बच्चों को सारी चीजें पता होती हैं, सो बट उस टाइम पे मुझे वो सब चीजें पता नहीं था। अगर ऑफ कोर्स इंटरनेट अगर होता उस टाइम पे तो मुझे ज्यादा इजी होता। बट एनीवेज जब मैं 8th में था तो 8th में जाने के बाद मेरे साथ एक दिन ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ जिसके बाद से मैंने डिसाइड किया कि मुझे शायद चीज़ों को अब फेस करना चाहिए और चीज़ों को अब ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता था 8th स्टैंडर्ड से पहले भी कि मुझे लोग अलग अलग नाम से बुलाते थे। मेरा नाम गौतम है बट कोई मुझे गौतम बोलना पसंद नहीं करता था। दे आर लाइक छक्का, हिजड़ा, लड़की है, महिला है, इस तरीके के वर्ड वो यूज करते थे। ये सब आपके क्लास के? हाँ, मेरे क्लास के जो भी बच्चे थे। एंड इवन कई बार ऐसा होता था कि बिकॉज स्कूल बस से आना जाना होता था, तो स्कूल बस अगर फर्स्ट ट्रिप के लिए किसी को लेके गई है छोड़ने के लिए, तो कई बार स्कूल बस को आने में टाइम लग जाता था। तो पूरा स्कूल खाली हो जाता था, तो हम लोग बस के लिए वेट कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता था कि वो बच्चे ड्रैग करके कमरे में लेके जा रहे हैं, दे आर टीजिंग, दे आर biting my cheeks or something like that। तो ऐसा कुछ वो करते होते थे। और physically biting with their own teeth। हाँ, तो वो सब चीजें जब होती थी तो मुझे बहुत अजीब लगता था कि ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। ये सारे बच्चे कितने उम्र के थे आपके साथ? ज्यादा लाइक व्हाट आई वाज अराउंड 14-15 इसके ही अराउंड थे। तो ये जो बुली करने का सिस्टम है इंडिया में वो काफी मतलब चला आ रहा है, क्योंकि एक तरफ से देखेंगे तो मतलब वो एक हेरिडिटरी चीज भी है, जो मतलब घर पे उनको कोई बुली करता है तो वो किसी और को स्कूल में आके बुली करेंगे, तो वैसा वाला। और वही सिखाया जाता है कि जो मर्द की तरह बिहेव नहीं करता वो कोई और नहीं है, राइट। तो वो भी एक इनसिक्योरिटी जो है वो लोगों पे प्रोजेक्ट करते हैं, तो आपको उसके थ्रू जाना पड़ा। तो मेरे साथ वही होता था कि अगर ये लड़का है तो लड़कों की तरह क्यों नहीं रहता है, ये इतना लहराता क्यों है या हिलता डुलता क्यों है, तो वो सारी चीजें मुझे फेस करनी होती है। इंसान अगर खुश हो तो उनको प्रॉब्लम है, तो वही होता था। तो बेसिकली देन 8th स्टैंडर्ड में एक दिन जब घर वापसी जाना था मुझे, तो बस का वेट करने के बाद जब हम बस में गए तो उस दिन कुछ तो टीचर की तरफ से हुआ था एंड मेरी डांट पड़ी थी और समथिंग लाइक दैट। तो मुझे बच्चे चिढ़ा रहे थे, मेरे क्लासमेट जो थे वो ही चिढ़ा रहे थे। एंड देन बातों बातों में किसी एक बच्चे ने मुझे बोला कि अरे ये तो हिजड़ा है। एंड उस बस में लगभग 50-60 बच्चे थे, यू नो, एंड आई फेल्ट सो बैड कि हाउ कैन यू से दिस कि हिजड़ा, वो भी इतने सारे बच्चों के सामने। तुम टीज करते हो, आई कैन अंडरस्टैंड कि एक ग्रुप में कर रहे हो या फिर कभी कभार मैं सामने आ रहा हूँ तो कर रहे हो, वो समझ में आ, बट इतने सारे बच्चों के सामने आई फेल्ट लाइक कि वहाँ पे नर्सरी से लेके 8th स्टैंडर्ड तक के बच्चे थे। एंड नाउ सेकेंड टाइम आई माइट नॉट फेस देम, यू नो। करेक्ट। तो दैट वाज द इंसिडेंट जिसने मुझे बहुत ज्यादा, क्योंकि वो अंदर से ज्यादा क्रश कर देते हैं इंसान मुझे को। काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुआ उस इंसिडेंट के बाद। एंड देन फिर और आपके वहाँ पे कोई सुपरवाइजिंग टीचर नहीं थी बस में या कोई? नहीं, तो बस वो बच्चे थे और मतलब एक बस ड्राइवर था, राइट। वो भी एक सिस्टम कितना अजीब सा है ना, मतलब इतने सारे आपने जैसे कहा कि नर्सरी से लेके 8th स्टैंडर्ड के बच्चों को जनरली साथ में रखना नहीं चाहिए, क्योंकि बड़े बच्चे नॉर्मली काफी कमीने होते हैं। एक बार वो 13 का एज पार कर लिया तो बाद में वो लोग काफी अपने छोटे के ऊपर बुली करते हैं, और अपने क्लास के भी जैसे आपके साथ हुआ वो बुली करते हैं। तो एक वो जनरल कोई तो ऑब्जर्वर रहना चाहिए था वहाँ पे। नहीं, बट कई बार होता था कि टीचर जाते थे, कई बार होता था टीचर नहीं जाते थे। वो हमेशा कैसे डिसाइड करते हैं कि रूट अगर है, अगर मान लीजिए मेरा एक XYZ प्लेस है, वहाँ पे अगर नर्सरी से लेके 8 तक के भी बच्चे हैं तो वो उसी रूट में उन बच्चों को डाल देंगे। एंड टीचर भी अगर उस रूट का है तो ही वो टीचर उस रूट पे जाएगा, वरना टीचर को घूमना पड़ जाएगा। तो एज सच ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था किसी के भी शोल्डर पे कि हाँ बच्चों को सही सलामत पहुंचाना है। क्योंकि नहीं मतलब वो स्कूल बस का भी जो डायनामिक है, मैंने भी काफी बचपन में जब मैं भी जाता स्कूल, आई थिंक दिस इज अ वेरी बैड एनवायरनमेंट समटाइम्स, यू नो, कि मतलब कुछ बड़े बच्चे या बिकॉज बड़े बच्चे जो हैं छोटे बच्चों के सामने माँ बहन की गालियां भी दे रहे होते थे, उनको मतलब बुली करते हैं, उनका खाना छीन लेते हैं, उनके पैसे लेते हैं, और ये सबको मालूम है, ये सबको लग सकता है कि हाँ ये नॉस्टैल्जिया है, लेकिन नहीं, एक्चुअली उसको वो बचपन के लेवल पे स्टॉप कर देना चाहिए एसेंशियली, ताकि वो बड़े होके और हरामी ना बने। क्योंकि वो लोग को इजी लगता है कि when you can talk to someone who's below you, then you can just basically feel powerful, and that's what they feed on, that power, that ego, and then they become evil people. और वो चलते आ रहा है जैसे कि हमने कहा। तो आपको लगा कि वो टाइम के बाद you have to really change your life? आफ्टर दैट मुझे लाइफ चेंजिंग नहीं, बट मैं एक डिप्रेशन का पीरियड आया मेरी लाइफ में। एंड देन आफ्टर दैट इंसिडेंट इमीडिएटली मैंने सेकेंड डे से स्कूल जाना बंद किया। अच्छा। एंड मैं स्कूल नहीं गया उसके बाद। आपके घर वालों ने कुछ नहीं कहा? नहीं, घर वालों ने एक्चुअली, मैंने मौका नहीं दिया उन्हें, बिकॉज आई टोल्ड देम कि मुझे
प्रॉब्लम है एंड एक्चुअल में उस टाइम पे मुझे हेडेक हुआ करता था एंड मेरा एम्स में कुछ इलाज भी चल रहा था. सो मे बी इट वॉज बिकॉज ऑफ आई वॉज थिंकिंग टू मच अबाउट माई सेल्फ कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है. एंड आफ्टर दैट इंसिडेंट वो और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हुआ. तो देन फिर वो मैंने उनको बताया कि पेरेंट्स को यही बोला कि आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई स्टडीज़ एंड अभी मैं नहीं जा सकता. सो देन बिकॉज उनके पास प्रूफ थे, एविडेंस थे कि हाँ ये एम्स में चल रहा है मेडिसिन, तो दैट्स वाई उन्होंने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया मुझे. सो उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि अभी मुझे ये धीरे धीरे बोलना है घर में. सो व्हेन आई वाज 17 तब मैंने डिसाइड किया एंड आई टोल्ड इट to my father. You stopped going to school basically after that, and you never went back to school after that? I did my schooling correspondence. Oh, nice. That's the best way. Basically, you have vacation time chilling at home only. तो वो अच्छी बात है. तो आपने 17 के age पे you decided to tell your father. Right. Okay. So what was the mindset? Because most of us usually go through our mothers. You know, Indian society is where you find more comfort in your moms than your dads. So why did you have to go to your father first? Actually, you know what? Like coming out, जब हम बोलते हैं coming out is a process, but कई सारे लोग उसको समझ नहीं पाते हैं. It's not like it's not like कि आज मेरे दिमाग की बत्ती जली है कि मुझे बोलना है या मुझे लग रहा है कि अब मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता and I just wanted to tell it to my parents or I want to come out to my family. इतना easy नहीं है वो. आपको पहले आइडेंटिफाई करनी होती है कि आपके अगर करते हैं तो क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है. यू नो लाइक क्या अच्छी चीजें क्या अच्छी चीजें हो सकती हैं, क्या बुरी चीजें हो सकती हैं. अब ऐसा नहीं है ना कि मैंने घर में बता दिया और पता चला कि अगले दिन से मेरे सर पे छत नहीं है एंड आई एम नॉट इवन डिपेंडेंट. या सो वो पूरा प्रोसेस जो है मैंने अपने आप में ही फॉलो किया कि लाइक मुझे पता करना है कि मेरे फैमिली में मेरे साथ क्लोज कौन है. यू नो सो आई फाउंड आउट कि मेरे फादर जो हैं वो मेरे क्लोज हैं. तो मुझे ये पता करने में लगभग 2 से 3 महीने का वक्त लगा. ओके. अपने पूरे से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में. बिकॉज आई स्पोक टू माय सिस्टर, आई स्पोक टू माय मदर, आई स्पोक टू माय फादर. सो व्हाट वाज the way you were judging them? I was judging them with like it was almost like कि 5 पॉइंट यहाँ मिलेंगे, 10 पॉइंट यहाँ मिलेंगे, 15 पॉइंट यहाँ मिलेंगे. तो पैरामीटर से अलग से. So it was like कि मैंने डिसाइड इस बेसिस पे भी किया था कि किसको कितनी नॉलेज है इन सब इश्यूज के बारे में. सो आई रियलाइज कि माय फादर वो हर चीज को फॉलो करते हैं. यू नो अगर आज भी आप जाके उनसे कोई भी पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में बात करेंगे या किसी भी XYZ टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, ही नोज एवरीथिंग, इज अवेयर. या करेक्ट. एंड तो वो चीज जो थी उसकी वजह से आई फेल्ट कि आई शुड टॉक टू हिम. So you thought that like he knew LGBT community exists करता है इंडिया में. So that's why because and उसके अलावा एक चीज़ और था कि उससे पहले मैंने एक अटेम्प्ट मेरी मम्मी के साथ किया था. एंड वो मिनी टेस्ट. वो मिनी टेस्ट था. इट वाज काइंड ऑफ कि आई जस्ट टोल्ड हर, आई गेव हर हिंट, बट उन्होंने शायद वो हिंट नहीं पकड़ पाया. आई जस्ट आस्क्ड हर कि मम्मी एक दिन ऐसे स्कूल से आने के बाद, सो आई आस्क्ड हर कि मम्मी ऐसा कोई होता है क्या कि कोई लड़का है और वो लड़के से प्यार करे, क्योंकि मेरे स्कूल में ऐसा एक लड़का है और मुझे समझ नहीं आता. तो माय मदर वाज लाइक उस लड़के के साथ अभी बात भी नहीं करनी है एंड अगर ऐसा कोई भी है तो दूर रहना. ऐसे लोग होते हैं लेकिन ऐसा बनना मत. तो ऐसा कुछ उन्होंने रिस्पॉन्स किया. सो ऐसा कुछ डिस्क्वालिफाइड इस टाइप का कोई रिस्पॉन्स आया. देन आई वाज लाइक ओके एंड इट वाज लाइक नॉट इवन 17. मैं काफी यंग, 1-2 साल पहले ही मैंने ये उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट टेस्ट कर लिया था कि हाँ ये हो सकता है. That's a smart way to go about it. You have to at least gauge कि उनको अगर मतलब कल बोलेंगे तो ऐसा एटलीस्ट बिल्ड करो कि हाँ एग्जिस्ट करता है कम्युनिटी, आपको पता है क्या आइडिया है कि नहीं. So एटलीस्ट वहाँ से ये पता चला कि उनको पता है कि हाँ ऐसे लोग होते हैं. बट हमेशा ये होता है ना कि अगर मान लीजिए कोई मेरे पास आया है अपनी परेशानी लेके, तो मैं उसको बताऊंगा कि ऐसा नहीं, ऐसा कर सकते हैं, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से रह सकते हैं. लेकिन अगर वही परेशानी मेरे को आई है, या फिर चाहे उसको हम इस वे में भी लें कि कोई अगर अपनी परेशानी बोल रहा है तो मैं शायद हंसूं उस परेशानी को लेके और मैं उसका मजाक बनाऊं, लेकिन जब वो परेशानी मेरे को खुद होगी तो मैं उस चीज को लेके और सैड हो जाऊंगा और बैठा रहूंगा कि हाँ ये मेरे साथ कैसे हो गया.
सो ऐसा ही कुछ मम्मी का था कि ठीक है अगर बाहर कहीं है ऐसा तो हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे घर तक नहीं होनी चाहिए ये चीज़ें, इस तरीके की मेंटालिटी। सो देन उसके बाद फिर जब पापा के साथ मैंने डिसाइड किया, उनके लिए भी यही था कि कितना वो समझ पाएंगे, क्योंकि वो देखते हैं न्यूज़ बहुत ज़्यादा देखते हैं, वो पढ़ते बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में। और उस टाइम पे आपने कभी सर पॉपुलर मीडिया में देखा था एलजीबीटी कॉन्वर्सेशंस को, या फिर एक्चुअली उस टाइम तक ऐसा होता था कि अगर कोई भी मीडिया में आ रही है ऐसी चीज़, तो अगर मैं लगाने की भी कोशिश करता था टीवी पे तो चैनल चेंज कर दिया जाता था। यू नो जैसे आज भी अगर कॉन्डम का ऐड आ रहा है बच्चों के सामने तो पेरेंट्स या तो उठ के पानी का बहाना बना लेंगे या फिर वो चैनल बदल देते हैं। तो अगर यूज कर लेते कॉन्डम तो बच्चों के सामने चेंज नहीं करना पड़ता। लेकिन on that note, we'll take a small break here, and we'll come back to find out how your father reacted. Okay, because I'm interested in that. We'll take a small break and we'll be back quickly. Thank you. Every film has a hero, heroine, villain, and songs. But what makes a film truly memorable are those great characters like Pappu Peja, Gabbar Singh, Mogambo, Calendar, and several others like that. Join me every week as I sit down to talk to brilliant actors who have played some of the most memorable characters in Indian film history. This is Bollywood Scene Stealers. Tune into a new episode every Monday on iTunes, SoundCloud, Audioboom, the IVM podcast app, or any other podcast apps you like. Hello and welcome back to Keeping It Queer. I'm here talking to Gautam, and before we went for the break, we spoke about how your mom and dad were tested before you came out with them, and your dad passed the test. तो आपने उनको बताया और उनका क्या रिएक्शन था उस टाइम पे? So basically it was like मैंने उनको सबसे पहले अप्रोच किया कि I want to talk to you in person. मुझे अकेले में आपसे बात करनी है. So first of all तो सबने मजाक किया कि like my mother was like ऐसा क्या है जो अकेले में जाके बात करना है, and my sister was like कोई लड़की देख ली है क्या जो अकेले में बात करनी है. So then I took my father to terrace. जब छत पे हम लोग गए तो I was like मुझे लिटरली समझ नहीं आ रहा था कि what should I say, क्योंकि ऐसा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा है शुरू कहाँ से करना है और ख़त्म कहाँ पे करना है, बिकॉज इतनी सारी चीजें हैं जिनको शब्दों में आपको बताना है, यू नो, एंड उससे भी ज्यादा आपको ये बोलना है कि मैं लड़का हूँ और मुझे लड़के अच्छे लगते हैं, यू नो. सो वो मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था कि इन सब चीज़ों को शब्द मैं कहाँ से दूँ. और कभी कभी ये एग्जाम की शॉर्ट नोट जैसा होता है, जब हमें 20 मार्क का आंसर लिखना है और एक थियोरी को प्रूव करना है एंड में, तो हाउ यू बिल्ड अराउंड दैट टू कम टू दैट थियोरी, दैट्स हाउ इट इज कमिंग आउट रियली इज लाइक दैट, नो, कि मतलब एंड में ये है कि okay, I'm a guy, I like guy, I'm a girl who like girls, I'm transgender, or I like to be gender non-conforming. वो सब बताने के लिए वो जो पहले माल मसाला डालना पड़ता है, वो बहुत ही ज्यादा रिसर्च के थ्रू और बहुत ही ज्यादा समझने के बाद ही हम कर पाते. समझ नहीं आ रहा था एंड आई स्टार्टेड क्राइंग. देन उनके 3 क्वेश्चन जो मुझे अभी भी याद हैं कि फ्रेंड से झगड़ा हुआ क्या, आई सेड नहीं. मम्मी से झगड़ा हुआ क्या, आई सेड नहीं. पैसे चाहिए, मैंने कहा नहीं. तो फिर रोना किस बात का है, रो क्यों रहे हो. देन फिर मैंने उनको बोला कि मुझे बहुत ज़रूरी बात ये करनी है कि मुझे लड़कियां नहीं लड़के अच्छे लगते हैं, एंड दैट्स इट. सिर्फ इतना ही बोला एंड उसके बाद मैं फिर रोने लगा. देन ही वाज लाइक कि कोई बात नहीं, लिव योर लाइफ द वे यू वांट, मैं हूँ तुम्हारे साथ. वाओ, that's all he said. या एंड यू नो मैं ये सोच के गया था कि थप्पड़ पड़ेगा और ये सोचा था कि शायद घर से जाने की तैयारी करनी पड़ेगी और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी दिमाग में, और मुझे यही लगा था कि एक शॉक देने जा रहा हूँ मैं उनको. बट जब उनका ये आंसर आया तो आई वॉज इन शॉक कि कैसे इतनी आसानी से नहीं एक्सेप्ट करते हैं. ये तो मैंने सोचा थोड़ा ड्रामा होता है, रेजिस्टेंस थोड़ा सा, मेक माय कमिंग आउट वर्थवाइल. सो बट ही वाज लाइक जस्ट लिव योर लाइफ द वे यू वांट एंड आई नो दैट यू आर गे. मुझे पता है तुम समलैंगिक हो, ऐसा करके उन्होंने बोला. एंड देन आई वाज आइडिया था पहले से शायद, या फिर मुझे समझ नहीं आया कि कैसे उनको आइडिया था इस चीज़ के बारे में. देन ही वाज लाइक कि ठीक है कोई बात नहीं है,
एंड उसके बाद फिर आई थॉट कि चलो पापा का तो हो गया, अभी मम्मी को बताना है और सिस्टर को बताना है. तो ये भी गेम लेवल जैसा हो गया, लेवल 1 लेवल 2 मॉम. या बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आप हेडमास्टर से डरते हो ना, लाइक प्रिंसिपल से आपको डर लगता है, फिर टीचर्स से तो आप निपट ही लोगे. वो भी है. सो आई टोल्ड इट टू हिम फर्स्ट एंड देन आई वाज लाइक कि चलो अब एक जगह से खत्म हुआ, नाउ आई नीड टू टेल इट टू माई मदर एंड माई सिस्टर. सो उनको जब मैंने बताया तो दे वर नॉट हैप्पी. माई मदर वॉज लाइक कि जैसी संगत करते हैं वैसे ही लोगों के साथ रह के बिगड़ गया है, इतनी कम उम्र में इतनी आज़ादी दी है, इस वजह से ऐसा हुआ है. एंड शी सेड सो मेनी थिंग्स. एंड सेम वे माई सिस्टर, ऐसा नहीं हो सकता, हम तो ये सोच रहे थे, हम वो सोच रहे थे. एंड वो तो लड़की वाला हिंट दे रही थी आपकी बहन को. हाँ, तो वो सारी की सारी चीज़ें उनकी तरफ से आई. एंड देन I was just listening to them and so I was told like, them together basically. Yeah. Okay. So I was like listening to them and I was like, ठीक है, तुम लोगों को जो समझना है समझो, but मेरे को मिल गया अप्रूवल. हाँ, मुझे बॉस. हाँ, पापा is understanding, that is enough for me. But उसी दौरान इन दिल्ली में फर्स्ट प्राइड होना था. Okay. दिल्ली का. सो बिकॉज अब मैंने घर में बता दिया तो आई वॉज लाइक ये भी बोल के ही जाऊंगा कि मैं प्राइड मार्च में जा रहा हूँ. सो आई टोल्ड माई सिस्टर दैट ऐसा ऐसा कोई एक प्राइड होने वाला है एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज मेरी जिंदगी का ये पहला प्राइड मार्च होगा. एंड दिल्ली का भी पहला, हाँ, एंड दिल्ली का भी पहला प्राइड मार्च है. एंड आई वाज लाइक जब कभी भी हिस्ट्री में भी इसका नाम आएगा सो आई कैन से इट प्राउडली कि आई वाज देयर फॉर दिस प्राइड मार्च. बट शी वाज लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए, वहाँ नहीं जाना है, वहाँ सारे ऐसे लोग आएंगे, तुम और बिगड़ जाओगे. सो शी स्टार्टेड ऑल दीज थिंग्स, यू नो. एंड आई वाज लाइक ठीक है, लिसनिंग एंड देन आई सेड ठीक है मैं नहीं जाऊँगा. सो दे बिलीव कि हाँ ठीक है, नहीं बोला है तो नहीं जाएगा. बट आई सेड कि संडे को मेरा क्लास है कोई, एंड आई वेंट देयर. जब मैं गया वहाँ पे प्राइड आई एंजॉयड प्राइड. वहाँ पे मुझे मास्क ऑफर किए बट मैंने नहीं लिया बिकॉज आई वॉज फीलिंग दैट I don't wanted to live dual life. That's why I came out. हाँ, वरना कमिंग आउट का कोई मतलब नहीं बन रहा है अगर मुझे अभी भी 2 जिंदगियां जीनी है तो. So then I was not wearing mask and I was enjoying Pride. So how did you find about the Pride? किसने बताया आपको Pride के बारे में? Pride के बारे में उससे पहले I went to this नाज फाउंडेशन एक संस्था है और उससे पहले भी जो काफी जानी मानी संस्था है. वो they filed a FIR against. They are the one who filed the case. In this Delhi High Court. So basically नाज के बारे में जो मुझे पता चला उसके लिए भी एक इंटरेस्टिंग ये है कि प्रिंस मानवेंद्र सिंह गोहिल के बारे में मैंने जाना था. So basically एक दिन, हाँ, तो बेसिकली एक दिन क्या हुआ कि मैं घर पे था और लंच डिनर कर रहा था. डिनर के दौरान उनका कोई पेंटिंग एग्जीबिशन का आया एंड उनका ओल्ड एज होम के बारे में कुछ आ रहा था किसी न्यूज़ चैनल पे. सो देन आई वॉज वॉचिंग दैट एंड वो देखने के बाद उनका नाम आया नीचे लिख के कि दिस इज द प्रिंस मानवेंद्र सिंह गोहिल. सो नेक्स्ट डे मैंने वो गूगल पे सर्च किया प्रिंस मानवेंद्र सिंह गोहिल, क्योंकि उस वक्त तक मुझे भी नहीं पता था कि मैं अपने आप को क्या बुलाऊं. मैं गे हूँ, बाइसेक्सुअल हूँ, ट्रांसजेंडर हूँ, मुझे कोई भी टर्म नहीं पता थी. सो उनको जब मैंने देखा टीवी पे, उनका गूगल पे मैंने वीडियोस देखे तो वीडियो में उन्होंने लिखा हुआ था इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर एंड कमेंट. तो वहाँ पे मैंने कमेंट में अपनी कहानी लिख दी एंड आई थिंक आई केम आउट बिफोर दैट. या आई केम आउट टू माई फादर दैट टाइम. सो मैंने उनको लिखा कि आई केम आउट टू माई पेरेंट्स, नाउ आई वॉन्ट सम सपोर्ट फ्रॉम यू कि दिल्ली में अगर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है या फिर आपके बारे में मैंने टीवी पे देखा, आई वॉन्टेड टू मीट यू और समथिंग लाइक दैट. और मैंने वहाँ पे नीचे अपना ईमेल आईडी दिया एंड नेक्स्ट डे मुझे ईमेल आया उनका एंड देयर वाज 2 नंबर्स. उन्होंने अपने पर्सनल नंबर दिए एंड देन आई कॉल्ड हिम अप. He's a very nice guy, no? He's opened a new institution for supporting LGBT youngsters. मुझे लगा कि उन्होंने अगर एक इंसान की भी मदद की तो बहुत. काफी लोग के लिए वो आउटकमिंग है. राइट. सो इनफैक्ट हम दोनों का कमिंग आउट ऑलमोस्ट सेम ही टाइम पे था बिकॉज ही केम आउट टू हिज पेरेंट्स, आई केम आउट टू माय पेरेंट्स. एंड उसके लिए तो मतलब प्रिंस है, मतलब एंड दैट्स हाउ आई सॉ हिम ऑन टीवी, क्योंकि उनका पॉपुलैरिटी इतना है कि न्यूज में आ रहा था कि नाउ दिस गे प्रिंस केम आउट और अभी ये चीजें करने वाले.
But I think there were other gay princes in India in the history which no one knows about. No one knows about. So उनसे बात करने के बाद then he told me about नाज फाउंडेशन, और वहाँ पे मुझे 1-2 नंबर उन्होंने दिए. So उसके बाद मुझे नाज फाउंडेशन जाके मुझे पता चला कि ऐसा कोई एक LGBT प्राइड मार्च होने वाला है. And then you ended up at the I went there. So I enjoyed the pride. एंड वहाँ पे बड़े नाइसली कैंडल जला रहा हूँ एंड चीज़ें कर रहा हूँ विदाउट मास्क. नेक्स्ट डे जब मैं घर पे गया आफ्टरनून में, सो माई सिस्टर वाज लाइक, तुम कहाँ गए थे कल? सो आई सेड क्लास थी. शी वाज लाइक, हमने देखा तुम्हारी कौन सी क्लास थी. The broadcast वाली. या एंड आई वाज लाइक, क्या हुआ? एंड फिर उन्होंने बोला कि तुम्हारा सुबह से 50 बार टीवी पे आ चुका है, तुम कैंडल जलाते हुए दिख रहे हो. तो मैंने कहा नहीं, कोई और होगा. देन शी वाज लाइक, अभी ये एड ब्रेक खत्म होने दो, अभी आ जाएगा. सो उस ब्रेक के बाद जब मैंने देखा एनडीटीवी पे, आई वाज द वन जो कैंडल जला रहा था. दिखते हैं ब्रेक के बाद. सो दैट वाज बिट फनी. तो मैंने फिर उनको बोला, मैंने कहा आराम से आप जाने नहीं दे रहे थे, तो मुझे झूठ बोल के जाना पड़ा. So they saw you at the Pride. Yeah. And I think I love going to the Pride always. Like I hope I got as much news coverage as you did. But I feel very welcome there. I feel everybody should at least once in their life go and check out a gay Pride. It happens in Bombay every year. It happens like in almost 16 parts of India now. Yeah. And we should check it out. In fact, last week we did it in Lucknow. This Sunday. Yeah. Lucknow Pride is actually trending a lot. And like right now also, because lot of Muslim youngsters came out and spoke about like how they don't care about the religious rules that are imposed on them. So Humsafar supported that Pride in Lucknow. So then that's what I was going to talk about. Like you now ended up working for Humsafar. So how did that journey begin for you? That journey, so when I was 17, after coming out, it was like, and I got in touch with Naaz Foundation. So coming out जैसे ही हुआ, it was like in 2 or 3 months I was around 18. Like मेरा birthday नज़दीक ही था. So क्योंकि before 18 nobody is going to entertain you because you are underage, right? So मैं नाज फाउंडेशन भी तब तक ऐसे एक बार अगर गया हूँ तो झूठ बोल दिया है कि हाँ आई एम 18, बट वेटेड फॉर 3 months कि हाँ चलो अब तो 18 का हो ही जाऊँगा. सो देन नाज फाउंडेशन जब मैं गया वहाँ पे मैं काउंसलर से मिला, कम्युनिटी से मिला, अपने जैसे और लोगों को मैंने देखा. तो नाज फाउंडेशन में मुझे एक काउंसलर से बात करते वक्त उन्होंने मेरे से पूछा कि व्हाट काइंड ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, लाइक तुम किस तरीके के चीज़ों में इन्वॉल्व हो, बिकॉज आई वॉज जस्ट 18. तो उनका ये जानना बहुत ज़रूरी था कि कहीं मैं अनसेफ प्रैक्टिस में तो नहीं हूँ, कहीं मैं कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा हूँ जिसके बारे में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है शायद कि मुझे बताना चाहिए या मुझे समझना चाहिए. क्योंकि मेरी उस वक्त कॉलेज या स्कूल की एज में, एंड आई एम मीटिंग पीपल इंटरनेट पे या फिर or dating sites say. Okay, so like you were sexually active before you were 18, you're saying? I was. Okay. So I was sexually active when I was 12 or 13. And it went on continuously, or was it like that's some game? So like at 18 they asked you obviously and you had to tell them everything in seriousness. It's not necessary कि आपको सारी चीजें बतानी है, just कि अगर होते तो actually I think you have to trust them with that. But it's like कि वो आपके भलाई के लिए कुछ पूछ रहे हैं या बताना चाहते हैं. तो इट्स बेसिकली लाइक गेनिंग इन्फॉर्मेशन, लाइक मुझे वो अवेयर कर रहे हैं कुछ चीजों को लेके. सो ही आस्क्ड मी कि एनीथिंग वेंट रॉन्ग तो पता चले वेयर इट वेंट रॉन्ग. सो उन्होंने मेरे से पूछा कि कितने लोगों से आप मिलते हो, लाइक हफ्ते में या महीने में, इनकाउंटर्स कितने होते हैं, या फिर किस तरीके के दोस्त हैं आपके, क्या आपको HIV के बारे में पता है, क्या आपको कॉन्डम के बारे में पता है. सो ऑल दीज थिंग्स ही आस्क्ड मी एंड आई वाज नॉट अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स. मैंने HIV के बारे में सुना था, वो भी ये सुना था कि एड्स होता है. आई वाज नॉट इवन अवेयर कि HIV और एड्स के बीच में भी अंतर होता है, यू नो. सो उन्होंने मुझे ये सारे डाउट्स क्लियर किए. और उससे पहले जो कॉन्डम के बारे में मैं हमेशा सोचता था ये एक ऐसा बलून है जिसको जितना फुलाना है आप फुला सकते हो, वो फूट नहीं रहा है पार्टी के लिए. सो इट उस तरीके की चीज़ें मेरे दिमाग में रहा करती थी. बट जब मैं उनसे मिला काउंसलर से, उन्होंने काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर किए और उन्होंने मुझे बताया कि HIV क्या होता है, किस तरीके से होता है,
और कैसे उससे बचा जा सकता है. एंड देन ही आस्क्ड मी कि आपको एक बार HIV की जांच करवानी चाहिए. सो आई वाज लाइक कि ठीक है, करवा लेते हैं. बट इट टुक मी 9 months ऑलमोस्ट. मुझे जब उन्होंने बताया, उसके बाद मुझे 9 महीने का पूरा टाइम लगा कि खुद को कन्विंस कर दिमाग को प्रिपेयर करने में कि जाना है. एंड आई वाज लाइक कि दैट्स ऑलवेज द फर्स्ट टाइम आल्सो गेटिंग अ टेस्ट डन वाज वेरी स्कैरी. बिकॉज़ यू लाइक क्या हो सकता है, यू नेवर नो. एंड देन लाइक आई वुड ऑलवेज कॉल अदर गे फ्रेंड्स ऑफ माइन कि विल यू कम एंड हेल्प मी आउट, एंड सम ऑफ देम वर लाइक नाइस इनफ टू से yes I will, and no one turned up actually. But then yeah, first time is very scary. So but before that, in those 9 months, हमसफर ट्रस्ट का एक मूवी है, 68 pages. Yeah, I've heard about this. Yeah, so वो 68 pages मैंने 11 बार देखा before going for test. So जब भी मैं देखता था, क्योंकि उसमें लाइफ दिखाई गई है कि कैसे लोग HIV के साथ रह रहे होते हैं और क्या लाइफ, किस तरीके से वो पॉजिटिवली अपनी लाइफ को जी सकते हैं. काफी नॉर्मलाइज करके उन्होंने बताया लोगों को कि काफी अच्छे से वो मूवी उन्होंने दिखाया है. तो उस मूवी को मैंने 11 बार देखा. एंड आई वाज फीलिंग लाइक जब भी वो खत्म होती थी तो मैं हमेशा सोच में बैठ जाता था कि अगर मैं पॉजिटिव निकल गया तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा. सो वन डे आई डिसाइडेड कि नहीं यार, अब खत्म करो ये चीज़, क्योंकि अननेसेसरी आई एम टेकिंग टेंशन. तो आई रिमेम्बर नवरात्रि चल रहे थे एंड मेरे फास्ट थे. somewhere in October. हाँ, somewhere in September. Okay. So September 24th or 25th ऐसा कोई डेट था. So September में I went for HIV test. मेरा 6th और 7th नवरात्रि का फास्ट था. तो जब मैं गया टेस्टिंग के लिए, it was like 10 to 15 minutes का टेस्ट था. एंड उस टेस्ट में आई केम टू नो दैट आई एम HIV पॉजिटिव. बट डॉक्टर ने उससे पहले मेरे से पूछा कि क्यों HIV की जांच करवानी है. सो आई वाज लाइक कि जस्ट करवानी है क्योंकि एक तो मैंने कभी देखा नहीं है कि कैसे ये जांच होती है, मुझे जानना है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं. एंड आई जस्ट वांट टू गेन लाइक improve my knowledge about HIV. So then for those 10 minutes like, that you went through, those 10 minutes that you had to go to the test, what all did the tests cover? It was just the blood sample? HIV. It was like prick करके उन्होंने लिया, and then it was just for HIV test. Okay, so but then were you mentally prepared to hear the news that it might be positive or no? Because then like you spent 9 months trying to feel good about it, but even at that second you were not ready. No. And then how did the doctor break it down to you? Doctor was like, it was, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था. डॉक्टर ने पहले पूछा कि क्यों आए हो, देन आई गेव दैट आंसर, एंड देन अगेन ही वाज लाइक, अगर तुम्हारा रिजल्ट पॉजिटिव निकला तो तुम क्या करोगे. सो आई सेड अगर पॉजिटिव निकला तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव ही है ना. सो आई विल लिव माई लाइफ द वे आई एम लिविंग राइट नाउ. एंड उसके अलावा मैं अपनी जो स्टडी है वो कंटिन्यू रखूँगा. एंड उससे पहले मैं गिटार सीखा करता था, क्लासिकल म्यूजिक सीखा करता था, एंड ऑल्सो आई वॉज इन टू थिएटर. तो ये सारी चीज़ें मैं करता था उस टाइम पे. सो आई सेड दिस थिंग कि अगर होगा तो मैं ये सब चीज़ें कंटिन्यू रखूँगा अगर पॉजिटिव भी आया तो. Pardon my asking, how young were you then? आई वॉज 18. 18 मतलब अगेन वही सितंबर था, तो दिसंबर में मुझे 19 कंप्लीट करना था. अच्छा. सो देन फिर उन्होंने, डॉक्टर ने मुझे सिर्फ ये दो सवाल के बाद ही टोल्ड मी कि गौतम आपका रिजल्ट पॉजिटिव है. बट वो छाती चौड़ी करके जो कुछ भी मैंने बोला था कि ये करूँगा वो करूँगा, सिर्फ पॉजिटिव ही तो होगा, वो सारी की सारी चीज़ें ख़त्म हो गई. आई वॉज लाइक टेबल पे सर पटका एंड आई स्टार्टेड क्राइंग. बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा. एंड देन ही वॉज लाइक चुप हो जाओ, बाहर लोग हैं, तुम क्यों बोल रहे हो, क्योंकि यू शुड नॉट. नहीं, ही वॉज लाइक कि अगर तुम रोगे तो जिन्हें नहीं बताना है उनको भी पता चलेगा कि तुम्हारा रिजल्ट पॉजिटिव निकला. सो इट्स बेटर कि हैंडल करो अब उस सिचुएशन को. सो but like you can't like at that point in life and that news breaks down to you, because we have built up HIV like such a monster in history. And if you look at the history of HIV and AIDS in the world, अमेरिका में when 80s में पूरा एक एपिडेमिक चल रहा था, तो people branded it as the gay disease, and it's obvious that you think of that disease like that, and it can be life crushing. Right. And I can only imagine how it feels. But then like you still have to keep your face. आपको फिर भी जिंदगी को फेस करना ही है, तो आप उसके बाद से आपने क्या किया? देन फिर डॉक्टर से बात करने के बाद ही टुक मी टू अंजलि मैम
जो नाज फाउंडेशन की हेड है, तो उन्होंने मेरे से बात किया एंड उनसे बात करने के बाद they were asking कि घर अब अकेले जा पाओगे या नहीं, because they were literally thinking about me, because बहुत छोटा था मैं और उनको लग रहा था कि अब ये बच्चा घर जाएगा नहीं जाएगा, कहीं कुछ करना बैठे, ड्रास्टिक स्टेप ना ले। हाँ, so they were like कि हम तुम्हें घर तक छुड़वा देते हैं, but I said कि नहीं, मुझे अकेले जाना है। But और आप फास्टिंग भी करे थे आपने? हाँ, I was fasting, but then फिर उसके बाद मैं जैसे ही नाज के दरवाजे से बाहर निकला, I was like, मैंने दोनों हाथ ऐसे ऊपर किए और आसमान में देख के मैंने भगवान को फर्स्ट टाइम बोला कि मुझे जीना है। वरना उससे पहले कई बार ये होता है ना, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपकी हो रही होती हैं, अच्छी भी हो रही होती हैं, फिर भी आप ये बोलते हो कि मुझे मर जाना चाहिए, मुझे वो तो बहुत नेगेटिव चीज़ें लोग सोचते होते हैं। बट दैट डे फर्स्ट टाइम एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस में लोग जीते ना, सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई रियलाइज कि लाइफ कितनी इम्पोर्टेंट है, यू नो, एंड आई वाज लाइक मुझे जीना है, मुझे अभी नहीं मरना, बिकॉज मेरे दिमाग में ये था कि अगर पॉजिटिव निकलते हैं तो इसका मतलब 2-3 साल में आप मर जाओगे, ये मेरा मानना हुआ करता था उस टाइम पे। सो देन जब मैं बाहर निकला, वो फर्स्ट विश मांगने के बाद मैंने फ़ोन उठाया और सबसे पहला कॉल मैंने विवेक को किया हम सफ़र में, एंड आई टोल्ड हिम अबाउट द रिजल्ट एंड एवरीथिंग, एंड ही वाज वेरी अपसेट बिकॉज उससे 2-3 महीने पहले ही हम लोग मिले थे, एंड आई शेयर्ड माई कमिंग आउट स्टोरी विद हिम, एंड आई क्राइड, आई सेड दैट सर आई वांट टू डू lots of things for for LGBT community and this thing. तो उनको भी काफ़ी दुख हुआ ये बताने के बाद, एंड देन फिर मैंने उनको बोला कि क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है एंड फैमिली इतनी ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, तो आई नाउ वांटेड टू वर्क फॉर हमसफ़र एंड आई वांटेड टू शिफ्ट टू मुंबई। सो देन दैट्स हाउ मैं हमसफ़र के टच में आया, और फिर मैंने विवेक को रिक्वेस्ट करके, विवेक ने मुझे हमसफ़र में शिफ्ट किया मुंबई में, एंड 2009 से 2011 दिसंबर तक मैंने हमसफ़र के साथ रह के काम किया। इस दौरान आपके घर पे आपने बताया नहीं? इस दौरान घर में अगेन वही था कि रिजल्ट आ गया है, सो आई हैड टू टेल इट अगेन। That's like you just came out like a year ago. Yeah, that was like, मैं वही सोच रहा था कि अभी 1 साल पहले मैंने उनको बताया कि मैं गे हूँ, अभी 1 साल बाद मैं उनके साथ एक और सरप्राइज पैक लेके जा रहा हूँ कि नाउ आई एम HIV पॉजिटिव एज वेल। So मुझे फैमिली के लिए एज अ सेट, वो जो ब्रांडिंग करके रखा था कि एड्स इज गे डिजीज, तो वो सुन के किसी भी पेरेंट का भी दिमाग ऐसा खराब हो जाएगा। बिल्कुल। सो आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या बोलना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं घर गया, आई आस्क्ड माई मदर कि मुझे खाना चाहिए, तो शी वाज लाइक एक और फास्ट रह गया, अभी खाना क्यों चाहिए, क्या हो गया तुम्हें? बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता था गॉड में, सो उनको पता करता था, मतलब अभी भी करता हूँ, बट डर नहीं लगता। पहले वो जो डर वाला बिलीव था ना, हाँ, what's there that can be thrown towards you that is not already been done, you know? आपने इतना कुछ सह लिया जिंदगी में, अभी और क्या कर्व बॉल फेंकेगा जिंदगी? So that's why I was like, वो डर वाली जिंदगी जो थी ना कि हाँ भगवान ये कर देगा, भगवान वो कर देगा, वो खत्म हो गया उसी दिन। I was like, अब कर ले जो करना है, भगवान है, ट्रस्ट करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है हर मंडे को मुझे मंदिर जाना है और फास्ट करना। हाँ, और फास्ट करना है। फास्ट का फंडा समझते हैं। उस दिन के बाद आज तक मैंने फास्ट नहीं किया। सो देन घर गया, मैंने खाना खाया, बट डे 1, 2, 3 मैंने नहीं बताया। बट डॉक्टर्स जिन्होंने मेरा टेस्ट किया था, उसके बाद उन्होंने मुझे रेफ़र किया किसी दूसरे क्लिनिक में, और वहाँ पे उन जो डॉक्टर थे, दे आस्क्ड मी कि आपको कोई तो एक पेरेंट को लेके आना पड़ेगा। सो बिकॉज ART का ट्रीटमेंट शुरू करना था, क्योंकि एक बार रिजल्ट आया उसके बाद आपके कुछ टेस्ट होते हैं। एक तो कन्फर्मेशन करने के लिए टेस्ट होता है कि आपका रिजल्ट जो है कहीं वो किट में गलत तो नहीं आया, तो वो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। उसके बाद फिर वो CD4 का टेस्ट करते हैं, वायरल लोड करते हैं, आपके TB की जांच होती है, और भी अलग काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं। तो जब मेरा CD4 काउंट 140 आया, तो डॉक्टर ने बोला कि आपको इमीडिएट ART शुरू करना है, एंड देन ही आस्क्ड मी कि आपके पेरेंट को लेके आना पड़ेगा। सो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे करूं। सो मैं अपनी एक फ्रेंड को लेके गया पेरेंट के बदले। तो उनको जब लेके गया तो डॉक्टर ने उनको भी वही समझाया कि 18 साल का है एंड पेरेंट्स का होना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो दवाइयां हैं इनके साइड इफ़ेक्ट हैं,
पता नहीं ये कैसे हैंडल करेगा, उतना ख्याल रखेगा नहीं रखेगा, दवाई टाइम से लेगा नहीं लेगा. सो दैट्स वाई दे वांट समवन टू फ्रॉम माय फैमिली. तो उसके बाद फिर मैं घर गया एंड देन आई कॉल्ड अप माय सिस्टर एंड मैंने उनको बोला कि बी प्रिपेयर्ड, मैं कुछ ऐसा डिस्कस करूँगा कि शायद आपको दुख हो वो सुनने के बाद, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है. एंड शी इज ओल्डर देन यू? मेरे से 10 साल बड़ी हैं वो. अच्छा, आपकी दो बहनें थी? आपने कहा था 2 बहनें, एक 10 साल बड़ी है और एक 2 साल बड़ी है. अच्छा. सो देन फिर मैं घर गया उनके, और घर जाने के बाद अगेन वही सेम सिचुएशन था जो मेरे फादर के साथ था. मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं बोलूँ क्या. मैं रोने लगा एंड देन उसके बाद शी इज़ लाइक प्रॉब्लम क्या है बताओ. फिर मैंने उनको हिम्मत करके जैसे तैसे बताया कि मैं टेस्टिंग के लिए गया था और मेरा रिजल्ट पॉजिटिव निकला है. सो शी हग्ड मी एंड शी वाज लाइक तो क्या हुआ. Okay. And again I was shocked. Because earlier she was not cool with the pride. That was the thing कि मेरे स्टेज उसके गे होने की वजह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम था. बट देन जब मैंने उनको HIV के बारे में बताया she was like तो क्या हुआ. Cool That's fine. And she was like TV नहीं देखते हो, कितने सारे ऐड आते हैं TV पे. She was like कि हो गया, अभी इतना सोचना नहीं है, नेक्स्ट स्टेप क्या है वो बताओ. देन मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे अभी ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो पेरेंट्स के बारे में भी पूछ रहे हैं. तो फिर उन्होंने बोला कि अगर पापा को या मम्मी को नहीं बताया तो मैं बताती हूँ. तो फिर उन्होंने कॉल किया एंड उनकी बात जो है पापा से हुई. एंड आई स्टिल रिमेंबर उन्होंने जब पापा को बताया कि इसका ऐसा रिज़ल्ट आया है, HIV हुआ है इसे, तो पापा का जो फ़ोन पे जब मैंने सुना, इट वाज लाइक ये तो सेक्स से होता है. तो मैं थोड़ा और डर गया बिकॉज ऑफ कोर्स किसी और को नहीं पता है कि मैं सेक्सुअली एक्टिव था उस टाइम पे. बट देन मुझे डर लग गया कि ये कैसे पापा बोल रहे हैं कि सेक्स से ही होता है. तो फिर मेरी सिस्टर ने उसी वक्त उनको फ़ोन पे बताया कि सिर्फ सेक्स से नहीं होता है, बाकी और जो रीज़न है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है पेरेंट्स से चाइल्ड को, जो कि आज के टाइम पे बहुत कम हो गया है ना, वो भी कम हो गया. एंड उसके अलावा इंजेक्टेड ड्रग्स जो होता है ना, अगर आप ड्रग्स सेम सिरिंज अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसके वो सारी चीज़ें उन्होंने पापा को एक्सप्लेन की. एंड देन उसके बाद माय फादर सेड कि ठीक है घर भेजो उसे, जो भी हेल्प होगा हम करेंगे. घर गया तो वो सिचुएशन काफ़ी नेगेटिव थी क्योंकि सब डिप्रेस सा था. एंड मैं भी काफ़ी ज़्यादा परेशान था. तो माई मदर स्टार्टेड क्राइंग कि ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया. एंड माई फादर वॉज लाइक कोई बात नहीं, ही वॉज स्टिल ओके कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, अभी ज़्यादा नहीं सोचना है. बट डिडंट दे लाइक कीप आस्किंग व्हाट वाज द सोर्स ऑफ दिस, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ? नहीं, बिकॉज इनफैक्ट सोर्स HIV का कहाँ से हुआ कैसे हुआ वो कोई भी नहीं बता सकता. बिकॉज सम टाइम आई फील लाइक कि मैं टैटू करवाया है उसकी वजह से भी हो सकता है क्योंकि निडल है वो भी. उसके अलावा आई वॉज सेक्शुअली एक्टिव एंड उसके बीच में मेरा एक बार एक्सीडेंट भी हुआ था जो कि बहुत गंदा एक्सीडेंट था जिसमें कि ऑलमोस्ट 10 लोग की डेथ हो गई थी. एंड आई वॉज द सिंगल पर्सन हु वॉज अलाइव इन दैट बस, यू नो. एंड यू हैड टू गो टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन देन? उस वक्त पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हुआ था, बट सर्जिकली भी काफी रिस्की होता है, मतलब क्योंकि इफ यू डीलिंग विद एक्सपोज्ड वुंड्स एंड शार्प ऑब्जेक्ट्स ऑफ एनी टाइम वेयर बैक्टीरिया कैन बी. तो नाउ यू हैव टू डील विद द रियलिटी. योर पेरेंट्स ऑब्वियसली नाउ हैव टू come up to this new shock after a year of you coming out. And I can only imagine again कि your psyche and their psyche again so हिल गया रहेगा सब कुछ आपके दिमाग में. बहुत ज़्यादा. So then उसके बाद फिर उनको मैं लेके गया वहाँ पे क्लिनिक में and then डॉक्टर से उन्होंने बात किया. My mother asked so many questions कि बच्चे हैं छोटे घर में, उनके साथ तो कुछ नहीं होगा अगर ये रहेगा, बिस्तर अलग तो नहीं करना है, खाना साथ में खा सकते हैं क्या, ऑल दीज क्वेश्चंस उन्होंने पूछे. एंड एक तरीके से मुझे अच्छा भी लगा कि ठीक है जो डाउट्स थे उन्होंने अपने डाउट्स क्लियर किए. बिकॉज क्यूरियोसिटी है. हाँ, बिकॉज ऑफ कोर्स जब मुझे इतना नहीं पता था तो उनको हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि पता होगा. सो देन फिर मेरा ART ट्रीटमेंट शुरू हुआ. एक तरह से आपको बुरा भी नहीं लगा थोड़ा सा कि मतलब माय ओन मॉम इज सेइंग कि कैन आई ईट विद द सेम
मतलब एट दैट पॉइंट आई अंडरस्टैंड कि उनका वरी ये भी है कि इट्स अ डिजीज विच इज समटाइम्स ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर पर्सन, लेकिन I would have like started crying if my mom asked somebody else कि can you eat food with us. बुरा नहीं लगा बिकॉज मुझे शायद ये था कि मुझे पता है मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती है, दैट्स व्हाई. और वो आपके भले के लिए पूछा. हाँ, सो एंड उन्होंने अपना नहीं पूछा, शी वाज आस्किंग फॉर द किड्स, लाइक मेरी सिस्टर के बच्चे हैं या ऐसा कुछ है, या रिलेटिव्स आ गए हैं, सेम टॉवल है या सेम बिस्तर है, सो वो सारी चीज़ें उन्होंने पूछी. या फिर कई बार हम बाइट ले लेते हैं और फिर ऑफर करते हैं हम अपने ही आपस में खाने के लिए, तो इस ये सब चीज़ें उनके माइंड में थे. तो उसके बाद दवाई शुरू हुई एंड इन मीन वाइल आई वॉज इन टच विद विवेक, एंड विवेक ने एक काउंसलर हुआ करते थे हम सफ़र में उस टाइम पे, और उन्होंने उन काउंसलर को स्ट्रिक्टली बोला था कि ये बच्चा जब भी फ़ोन करे आपको इसके कॉल का आंसर देना है या कॉल बैक करना है और रेगुलर टच में रहना है. सो वो एक चीज़ थी जिन्होंने, जो काउंसलर मेरे पास हमेशा अवेलेबल थे उस टाइम पे, जिनसे मैं बात कर पा रहा था. एंड देन फिर नवंबर में मैं मुंबई शिफ्ट हुआ दिल्ली से, एंड दैट्स हाउ आई गॉट इन टच विद हमसफ़र एंड आई स्टार्टेड वर्किंग विद हमसफ़र. That's lovely. So when you said ART, and like a lot of people who are listening will not know what that full form is or what it covers, तो आप बता सकते हैं कि वो मेडिकेशन के अंदर क्या कवर होता है और क्या ट्रीटमेंट रूटीन है उसका? सो बेसिकली ART इज एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी और ट्रीटमेंट. सो उसके अंदर बेसिकली अगर कोई पर्सन पॉजिटिव होता है तो उनके लिए जो HIV की ये ड्रग्स हैं, जो अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं. नाउ डेज जो ड्रग्स आते हैं इट्स लाइक वंस इन अ डे उनको लेना होता है. माइन इज़ ट्वाइस अ डे, सो मॉर्निंग भी लेना है, इवनिंग भी लेना है. एंड बेसिकली ART का जो ट्रीटमेंट है, ये HIV का जो ट्रीटमेंट है, वो ऐसा ट्रीटमेंट है कि आपने अगर एक बार शुरू किया है तो आपको वो लेते ही रहना है जब तक आप हो इस दुनिया में. यू नो, इट्स लाइक लाइफ सेविंग मेडिसिन्स. लेकिन कई बार ऐसा होता है जो वायरस है आपके ब्लड स्ट्रीम में, उसको रोक के रखता है एक तरफ से. इट्स लाइक अगर जैसे आप HIV का जो वायरस है वो आपकी बॉडी में जब एक बार आ जाता है, उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल HIV का कोई सिम्टम नहीं होता है. अगर कोई पर्सन पॉजिटिव भी है, इफ ही इज ईटिंग हेल्दी और एक्सरसाइज कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उस पर्सन को 5 से 10 साल भी लग सकते हैं ये जानने में कि वो HIV पॉजिटिव है, अनटिल एंड अनलेस वो HIV की जांच कराने ना जाए. तो इस वजह से हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप विद इन 6 लाइक हर 6 महीने में एक बार तो HIV की जांच होनी चाहिए इफ़ यू आर सेक्सुअली एक्टिव. एंड तो HIV का वायरस एक बार जब हमारी बॉडी में आता है, वो मेनली हमारे अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो बीमारी को, हाँ जी, जो किसी भी तरीके के बैक्टीरिया या इन्फेक्शन या फ्लू वायरस इन सब से लड़ने में हेल्प करता है ना, हमारे बॉडी का आर्मी है basically. हाँ जी. सो वो बेसिकली HIV जो है उनको ख़त्म करता है. वो एक बार अंदर आया और वाइट ब्लड सेल्स को मारना शुरू कर देता है, एंड HIV उनको ख़त्म करेगा और HIV खुद बढ़ता जाता है हमारी बॉडी में. सो एक लेवल ऐसा आता है कि आपके वाइट ब्लड सेल्स इतने डाउन हो जाते हैं कि आपको अगर सर्दी जुकाम भी हो रहा है तो वो भी जाने में टाइम लगेगा. आपको फीवर बार बार आ रहा है, आपको अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. सो देन ART ट्रीटमेंट जो है वो शुरू जब होता है तो वो आपका अंदर जो HIV का वायरस है उसके ऊपर काम करता है, एंड वो बेसिकली वायरस को मारता नहीं है, इट जस्ट डीएक्टिवेट दैट. डिले करता है उसको. हाँ, मतलब. तो जब हम पानी पीते हैं तो व्हेन वी किसी भी तरीके का लिक्विड हमारे शरीर से बाहर जाता है तो वो ख़त्म होके और बाहर निकल जाते हैं हमारे बॉडी से. सो उस टाइम पे HIV के वायरस हमारी बॉडी से टेम्परेरीली बाहर जाते हैं, ख़त्म होते हैं, लेकिन वाइट ब्लड सेल्स जो हैं उनकी काउंट बढ़ने लगती है. एंड दैट्स हाउ वो वर्क करते हैं. उस जगह पे अलग अलग बीमारियां जो हैं उनकी तो रोकथाम होती है और हम काफ़ी सारी चीज़ों से बच सकते हैं अगर हम ART ट्रीटमेंट टाइम से ले रहे हैं तो. बट कई बार ऐसा होता है कि लोग ART ट्रीटमेंट समझ नहीं पाते हैं. जैसे अगर मैं पॉजिटिव निकला हूँ तो मुझे लगेगा कि ART ट्रीटमेंट मैं ले रहा हूँ, और 6 महीने बाद 3 महीने बाद अगर मैं हेल्दी लगने लगा हूँ या मेरी सेहत अच्छी हो गई है
तो आई विल फील लाइक कि हाँ चलो अब HIV तो नहीं है, मैंने इतनी दवाइयाँ खा ली हैं तो शायद अब मैं ठीक हो गया हूँ। सो कई बार ऐसा होता है लोग दवाइयाँ बीच से ही छोड़ देते हैं एंड वो फिर दवाइयाँ कंटिन्यू नहीं करते। दैट इज नॉट अ गुड थिंग टू डू, नॉट एट ऑल, क्योंकि अगर आप वो दवाइयाँ मिस कर रहे हो या छोड़ रहे हो तो वो दवाइयाँ अगर आप 3 महीने स्किप करने के बाद या 2 महीने स्किप करने के बाद आप फिर से खाओगे तो वो दवाइयाँ आपके ऊपर काम नहीं करेंगी, क्योंकि उन दवाइयों का, अब आप कोई सी भी मेडिसिन लीजिए, क्रोसिन है, डिस्प्रिन है, सबका अपना अपना एक काम है। डिस्प्रिन आपका फीवर नहीं खत्म करेगी, वो सिर्फ आपका सर दर्द खत्म करेगी, राइट। पैरासीटामोल आपका फीवर खत्म करेगा। सो इसी तरीके से ART का जो ट्रीटमेंट है उसका इंस्ट्रक्शन है कि फॉर एग्जांपल XYZ वायरस है, उसको खत्म करना है, वायरस का शेप X है, तो उस ट्रीटमेंट का टारगेट X रहेगा। लेकिन अगर आप उस ट्रीटमेंट को नहीं ले रहे हो टाइम पे, तो नाउ दैट वायरस, जो HIV का वायरस हमारी बॉडी में है, इट विल बिकम लाइक कि उनको पता चलता है कि ये मेडिसिन है, ये मेरे ऊपर ये अफेक्ट करती है, तो नाउ वायरस जो है वो अपना शेप चेंज कर लेगा। ओके, वो Y बन जाएगा, एग्जाम्पल वो Y बन जाएगा, या फिर कलर में अगर एग्जाम्पल ले तो ग्रीन से रेड हो जाएगा। ओके, तो नाउ अभी वो मेडिसिन जो आएगा काम नहीं कर पाएगा, तो वो मेडिसिन X को ढूंढेगा, बिकॉज उसका काम जो है, उसको इंस्ट्रक्शन दिया गया है X को ढूंढना। उसको X नहीं मिलेगा, वो ड्रग्स फेलियर होगा, और जो Y में जो शेप में आ गया HIV वो बढ़ता जाएगा। तो ये वायरस इवॉल्व भी होता है एक तरफ से, अपने आप से। हाँ, तो अगर हम ये सोच के चलें कि ये खत्म हो रहा है या मैं हेल्दी हो गया हूँ और अब मुझे कुछ नहीं हो सकता, तो वो एक गलत फहमी होती है। एंड दैट्स वाई हम बहुत पर्टिकुलरली बोलते हैं कि आपको जो मेडिसिन है वो ऑन टाइम ही लेना है, आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने फर्स्ट लाइन, फिर वो ट्रीटमेंट आपका फेल हो जाएगा, फिर आप सेकंड लाइन पे जाएंगे, अगर आप सेकंड लाइन पे भी वैसा ही करेंगे तो थर्ड लाइन पे जाएंगे, एंड आफ्टर थर्ड लाइन देयर इज नथिंग। सो दैट्स व्हेन इट बिकम्स मच वर्स देन व्हाट इट इज। एंड अगर ART ट्रीटमेंट ले रहे हैं लोग, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ये हैं कि आप बहुत ज़्यादा सिक नहीं होंगे अगर आप टाइम पे ले रहे हैं, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, सब कुछ वो एक मेडिसिन से ही हो रहा है, आपको मल्टीपल बीमारियां नहीं होंगी। तो दैट्स व्हाई वी टेक दैट। So thank you so much. That was very informative on the ART part. We'll take one more small break here, and we'll come back and learn what you now do and the amazing things that you do now in your life. We'll come back after a quick break. Yeah. Hi, I'm Amit Verma, the host of the weekly podcast, The Seen and the Unseen. In my show, I examine the seen effects and the unintended consequences of public policy and private action. I show how policies meant to help the poor often end up hurting the poor. I've done episodes so far on demonetization, GST, surgical strikes, immigration and MRP. And I will continue my forensic assault on the truth in the weeks to come. Catch this show every Monday on iTunes, Stitcher or your favorite podcast app. And go to seenunseen.in for all the latest updates. Hello and welcome back to Keeping It Queer, and we are in conversation with Gautam Yadav of Humsafar Trust Delhi, and it's been a very colourful life, a very adventurous and very, might I say, tragic filled life as well to an extent. लेकिन आपने इन सब को ओवरकम करके आपने डिसाइड किया कि मुझे जीना है, और आपने लड़ने की डिसीजन को फॉलो किया कि आपको अभी कुछ भी करके you have to survive and you have to be a model to other people, and that's what you are, like, so you now, not only from Humsafar, you also decided to open your own organization. When did that happen? So मेरा अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन मैंने स्टार्ट किया Feb 2016 में, बिकॉज बेसिकली आई एम पार्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द ग्लोब. सो यूथ लीड जो है वो एक एशिया पैसिफिक का नेटवर्क है विच इज़ वर्किंग इन डिफरेंट कंट्रीज़, एंड उसमें हम लोग इश्यूज़ हाईलाइट करते हैं जो कि यूथ रिलेटेड हों, चाहे वो एजुकेशन है, एडवोकेसी है या कैपेसिटी बिल्डिंग है. सो जब मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का बोर्ड मेंबर बना बैंकॉक में, सो आई फेल्ट लाइक कि इस तरीके का एक ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में भी होना चाहिए जो कि सिर्फ और सिर्फ यूथ को फोकस करे. सो देन आई हैड वर्ड विद द पीपल इन सेक्रेटेरिएट बैंकॉक में, और मैंने फिर अपना ये इनिशिएटिव इंडिया में शुरू किया, जिसमें हमने 2016 में विद इन 6 to 8 months हमने 4 प्रोजेक्ट किए.
एंड और ये प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग कहाँ से मिला आपको? ये हमें यूथ लीड की तरफ से ही मिला था, सेक्रेटेरिएट से. सो बेसिकली वी गॉट सम अमाउंट, और जिसमें हमने अलग अलग कुछ कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम किए, जिसमें देयर वाज वन फॉर ट्रांसजेंडर एंड हिजरा कम्युनिटी, जिसमें हमने सक्षम सखियाँ उसका नाम दिया, जिसमें हमने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को एम्पावर करने की कोशिश की और उनको ब्यूटी पार्लर का कोर्स या स्टिचिंग, सिलाई, कढ़ाई ये सब सिखाया. एंड उसके अलावा वी डिड प्रोजेक्ट चर्चा, जिसमें चर्चा में बेसिकली दिस इज़ अ इनिशिएटिव ऑफ यूथ लीड जो कि हम हर साल करने का सोच रहे हैं. लास्ट ईयर हमने किया था मीडिया के साथ कि उनको किस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए फॉर LGBT कम्युनिटी और क्या क्या चीज़ें उनको अवॉइड करने चाहिए. तो ऐसी कौन सी चीज़ें जो पहले वो बोलते थे अभी उनको नहीं बोलना चाहिए? फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा होता है अगर कुछ भी LGBT रिलेटेड आता है तो दे से कि 377 को ही ले लीजिए, तो उसमें उन्होंने बोला है कि गे सेक्स इज लीगल इन इंडिया. इट्स नॉट ओनली अबाउट सेक्स, And that is misinformation on such a big level. सबको वही बोल रहे हो लोग. It's about our life. सिर्फ हम 24/7 सेक्स नहीं करते हैं. So इस तरीके की चीज़ें. और या फिर कई बार ऐसा होता है कि मीडिया इज पब्लिशिंग समथिंग अबाउट अ गे पर्सन बट फोटो जो है वो ट्रांसजेंडर का डाल रखा है, यू नो. एंड तो इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि उनको बेसिकली ये हमसफ़र का ही एक मैनुअल है जिसको हमने एक तरफ से पॉलिटिकल करेक्टनेस आनी चाहिए. राइट. मतलब द हिजरा कम्युनिटी इज़ अ वेरी ओल्ड कम्युनिटी और जो काफ़ी रिफाइंड कम्युनिटी है. हमने उर्मी जादव से बात किया जो खुद हमसफ़र में काम करते हैं, और उन्होंने बताया कि उनके घराने होते हैं, उनका लिटरली एक लिनियज है. तो हमें उस चीज़ को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ना कि मतलब हर एक बंदा जो फेमिनिन ट्रेट्स रखता है उनको गाली की तरह यूज़ करना चाहिए. तो एक्चुअली दैट्स अ वेरी स्मार्ट थिंग टू डू, एडुकेट पीपल की बात कैसे करते हैं विद रिगार्ड्स टू LGBT. सो वो था. एंड देन आफ्टर दैट हमने एक लीडरशिप समिट भी किया जिसमें हमने यंग LGBT कम्युनिटी को दिल्ली में लगभग 10 से 15 लोगों के साथ मिलके हमने उनको ट्रेनिंग दिया अबाउट लाइक डिफरेंट इश्यूज, लाइक 377 है, HIV है, या उनका खुद का कैपेसिटी बिल्ड करना है. तो वो हामले शख्स एक ग्रुप है उसके साथ मिलके हमने किया. सो इस तरीके से हमने 3-4 प्रोजेक्ट्स किए थे लास्ट ईयर. हामले शख्स भी मोस्टली यूथ के साथ ही काम करते हैं. हामले शख्स इज आल्सो वर्किंग. तो दिस वन क्वेश्चन आई हैड व्हेन वी वर टॉकिंग अर्लियर कि आपको 18 के बाद ही नाउ फाउंडेशन में काउंसलिंग मिला. तो क्या ये थोड़ा रिस्की नहीं हो गया? क्योंकि हम मोस्टली 13 की उम्र से जानते हैं कि हमारा लाइकिंग क्या रहेगा. हम मोस्टली मतलब एक जनरल कंसेंसस रहेंगे तो करेंगे तो लोग बोलेंगे कि हाँ at this age I found out that कि I like guys and I was sexually active at 14 or 15 sometimes or 17 sometimes. तो हमें उन बच्चों को भी हेल्प करना चाहिए इन जनरल. आई थिंक कि there should be counseling at that age itself, ताकि जब वो 18 के हो उनको धक्का ना लगे या फिर उनको इतना सारा इन्फॉर्मेशन डंप ना हो उनके सर पे. एक्चुअली मेरा मेन इशू यही है. इनफैक्ट जब कभी भी मैं नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के साथ डिस्कस करता हूँ या फिर किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे होता हूँ या नेशनल प्लेटफॉर्म पे होता हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यही डिस्कशन करता हूँ कि जो कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें लगता है कि बच्चे हैं, लेकिन वो बच्चों को पहले से समझ में आने लगता है. समझ में आने का मतलब ये है कि बच्चों को एक क्यूरियोसिटी होता है कि ये चीज़ ऐसे होती है तो मुझे उसके बारे में और जानना है, और कोई देता नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मैं जब स्कूल में था, मेरे साथ वो इंसिडेंट हो रहे थे, अगर मेरे पास स्कूल में उस वक्त कोई काउंसलर अवेलेबल होता तो शायद मैं उसके साथ बात कर पाता और मेरा स्कूलिंग जो था वो कंटिन्यू रहता. मैं वो स्कूल छोड़ता नहीं. इसी तरीके से अगर किसी पर्सन को कोई भी अगर बच्चा है जिसको पता है कि उसको HIV की जांच के लिए इस जगह पे जाना है, XYZ प्लेस पे जाना है या किसी गवर्नमेंट के ICTC सेंटर में जाना है, तो उनको जाने देना चाहिए. अगर मुझे पता है कि STI का इलाज यहाँ पे होता है तो मुझे वहाँ जाने देना चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं है. अगर मैं आज HIV की जांच करवाना चाहूँ और मैं 18 साल से कम हूँ तो मुझे कोई भी इंटरटेन नहीं करेगा जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि मैं 18 साल से कम उम्र का हूँ. एंड मुझे नहीं लगता कि मेरी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, अगर मैं किसी के साथ सेक्स कर रहा हूँ, किसके साथ जा रहा हूँ, आई डोंट वांट टू डिस्कस दिस थिंग विद माय पेरेंट्स. तो उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए. और मुझे कुछ चीज़ें हैं जिसको लेके मुझे थोड़े
पहले से ही डिसीजन लेने का हक होना चाहिए. सो दैट्स व्हाई मैं हमेशा एज ऑफ कंसेंट का मुद्दा उठाता हूँ कई सारे प्लेटफॉर्म्स पे. So let's see. What's the issue that you discuss? मतलब the issue the same which I just discussed कि उनको at the younger age you should be able to get counseling. Right. At the young, not only counseling but also blood tests. अगर वो उनको पता है कि कहाँ पे टेस्टिंग हो रही है तो वो जा सके. अब फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास एक केस है जो कि बच्चा है 17 साल का है. एंड ही इज़ लाइक कि एंड ही कॉल मी भैया. ही इज़ लाइक भैया मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे सेक्स चेंज करवाना है एंड आई वांटेड टू डू इट. तो मैं उसकी मदद नहीं कर सकता. उसको और रुकना पड़ेगा 1 साल तक. हाँ वो 18 साल का हो जाए तभी मैं उसको कुछ गाइड कर पाऊंगा. जबकि वो अपने माइंड में क्लियर है कि उसे सेक्स चेंज करवाना है और ही इज फीलिंग लाइक कि वो एक कैद है, लाइक एक मेल बॉडी में एक फीमेल कैद है, उसको लगता है ऐसा. और वक्त के साथ वो और बिगड़ते जाता है हमेशा. सो दैट दीज आर द थिंग्स जो आज के टाइम पे हमें देखना पड़ता है. और लोग आ रहे हैं जिनको पता है, अर्ली एज में ही उनको क्लियरिटी है, चाहे उन्होंने इंटरनेट पे पढ़ा हो. आप ये देखिए आज के बच्चों को इंटरनेट पे वो एक क्लिक करते हैं और 50 चीजें आ जाती हैं, सजेशंस. अब हम बच्चों को ये अलाउड नहीं कर रहे हैं कि यू go for testing or you go and talk to someone about safe sex, sexuality and all these things, ये सोचते हुए कि आप 18 साल के नहीं हो अभी. बट इसकी कौन गारंटी लेगा कि मेरे घर में जो बच्चे हैं वो 7 साल का है या फिर 10 साल का है या 14 साल का है. ये कौन गारंटी लेगा कि जब उनके हाथ में मोबाइल हमने दिया है वो इंटरनेट पे जाके और वो चीज़ें सर्च नहीं करेंगे. एंड इंटरनेट पे अगर आप एक शब्द डालते हैं तो उसके बारे में अलग अलग तरीके से कई सारी चीजें आती हैं. अगर आपको एक चीज अच्छी दिखेगी तो 5 चीजें ऐसी होंगी जो कि आपको कहीं और जाके मिसगाइड करके और किसी और जगह पे ले जाके छोड़ेंगी, यू नो. और सब एंड अप होता है पॉर्न पे. दैट्स व्हाट यू नो. एंड कई सारे बच्चे जाते भी इसलिए हैं कि उनको पॉर्न देखने वो क्यूरियोसिटी है. मुझे भी थी वो क्यूरियोसिटी होती है कि मुझे जानना है. तो उसको ना ही हमने कंडेम करना चाहिए, इनफैक्ट उनको कम से कम वो बढ़ता हाथ देना चाहिए कम से कम कि इफ यू नीड हेल्प देन वी आर हियर. पूरा एजुकेशन नहीं बट एटलीस्ट उनको बेसिक नॉलेज तो हो. अब हम ऐसे जमाने में बैठे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट सेक्स एजुकेशन में से सेक्स रिमूव करके उसको पता नहीं कौन सा एजुकेशन नाम देना चाहता है, यू नो. प्रीवियस कुछ महीने में ऐसा डिस्कशन हुआ है कि वो सेक्स एजुकेशन में से सेक्स रिमूव करना चाहते हैं. जब मैंने सर्च किया था इंटरनेट पे, आई सर्च्ड अबाउट मानव एंड आई सर्च्ड अबाउट द कम्युनिटी. जब मुझे और पता चला LGBT के बारे में, तो जब मैं पढ़ने के लिए गया गूगल पे LGBT के बारे में, तो मुझे LGBT के साथ साथ साइट्स के बारे में पता चला जो गे डेटिंग साइट्स हैं. तो ऑफ कोर्स जब वहाँ पे मुझे साइट्स के बारे में पता चला एंड दो साइट्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उस पे आईडी बनाने में कितना टाइम लगता है. एंड दैट्स हाउ आई एंडेड अप लाइक मीटिंग पीपल हियर एंड देयर. वो भी है. तो जहाँ पे कंफर्ट है वहाँ पे लस्ट भी है. तो बिल्कुल वो दोनों कभी भी साथ में. एंड ह्यूमन नेचर है, तो इसके लिए हम ये नहीं बोल सकते कि ये गलत है. हाँ, बट देन ऑल्सो केयरफुलनेस इज व्हाट वी शुड ऑलवेज प्रीच. I think it's time to wind up now. We learned so much about your life, Gautam, and we would definitely want to learn more about what you do in the future seasons of the show. And I hope you come back. Yes. And thank you so much. I think what you do and what you stand for is so much positivity and so much, keep fighting and life will get so much better. And आपने जो किया है, I think more people follow and learn from you. Thank you so much again for talking to us. Thank you so much for inviting me here. Yes, and if you need any help, Humsafar Trust again is there for you. You can reach out to Youth Lead. So is there a way they can get in touch with you if they want to, if there's a person who's listening and wants to reach out? So I have my official email ID. It's gautamyadav.hst@gmail.com. gautamyadav.hst@gmail.com. Awesome. And my email ID is naveen@indusvox.com. Write to us, tell us how you feel. If you want to feature on the show, we can feature you on the show. If you want to talk to Gautam or me again, always welcome. I'm always available. Yes, and we are keeping it queer and we're enjoying life, and that's the show for now. Thank you. Well, if you enjoyed the show, you can listen to more of it on any of the podcasting apps you like. You can look out for us on Audio Boom, Pocket Cast, Stitcher, Beyond Pod,
But if you're looking for us on the iTunes India store, you might have a bit of a trouble finding us because of the language used on the show. So be sure to change your location and then listen to us. For now, it's me, Naveen Narona, signing off. Goodbye. Thank you so much. And please continue keeping it queer. Good evening, ladies and gentlemen. This is your captain speaking. Sorry to say, but there's been a slight delay due to the apocalypse having suddenly begun. As you can see, there's death, destruction, and chaos taking place all around us. But don't you worry, food and drinks will be served shortly, and I would recommend checking out IVM Podcasts to get some of your favorite Indian podcasts. We'll keep you going till this whole thing blows over. Thank you.